Now today, if you are able to see, I hope your screen is clear. If everything is okay, then say yes. Case based question, volume, surface area of solids, that will be maybe cube or cuboid, cylinder, or basic computation based are there. So now question number 1. Come to the question number 1. A school has a rectangular water tank made of cement. The length of the tank is 12 meter. Okay, breadth is 5 meter and height is 4 meter. The tank is filled completely every morning. The stored water is used by students and staff throughout the day. Based on the above information, answer the following questions. Now question is there. First of the thing is that यहाँ से हमें क्या क्या मिला, पहले ये देख लेंगे हमको यहाँ से क्या क्या मिला. First thing is that 12 meter, one thing. Second is that 4 meter. Okay, and breadth is there also there, that is of 5 meter. Okay, so what you are getting, you got that the length of the tank is the 12 meter, breadth is that of 5 meter, and height of the tank is 4 meter, and the tank is filled every morning, and so that first question is that find the volume of the water tank. वाटर टैंक का वॉल्यूम क्या होगा. फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन द लीटर. ठीक है, कि जो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक है वो क्या होगा. थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक. बन जाएगा. Now you want the solution that first of the question is that volume. पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एल क्रॉस बी क्रॉस एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट. लंबाई लेंथ को ब्रेथ को एंड हाइट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. देन यू विल गेट द 12 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज 240 मीटर क्यूब. ओके, एंड for the next one is that find the, and the second question was find the total capacity of the tank in the liters. Okay, so now total capacity, so capacity is equal to, and that will be in the liter, that will be in the form of the liter. So capacity equal to volume multiplied by 1000, because why, because we know that 1 meter cube equal to 1000 liter, 1 meter equal to meter cube equal to 1000 liter. So that capacity of the tank in liter equal to 240 multiplied by 1000 equal to 2,40,000 liter. And now the next question is that find the total surface area of the tank. For the total surface area, we know that this is the cuboidal tank. If the tank is in the form of the cuboid, then what you will do,
you will do that 2 into LB plus BS plus HL. So that L cross B, L is that 12, breadth is that 5, then 12 into 5 equal to 12 5 is 60, B into S that is 5 into 4 equal to 20 plus H into L that is 12 into 4 that is 48. If you will add that, then you will get the solution. I hope no one is there. Now come to the second question. A gift box is made of the shape of a cube. The length of each edge of the box is 6 centimeter. The box is completely filled with small chocolates. The shopkeeper wants to know the space inside the box. कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि एक गिफ्ट बॉक्स है जो कि क्यूब के शेप में है और जो लेंथ ऑफ द एज ऑफ द बॉक्स यानी कि जो साइड है क्यूब का वो यानी एल को एल में बी बी में बी एच तीनों के सेम होता है क्यूब में, तो तीनों सेम होता है तो क्या करेंगे उसको, वही हमारा क्या होगा वन साइड ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का जो एक साइड होगा वो तीनों साइड ऑल साइड्स के इक्वल होगा। दैट विल बी यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ इच एज ऑफ द बॉक्स इज 6 सेंटीमीटर, यानी क्या दे दिया साइड ऑफ द क्यूब दे दिया। आई कह रहा है क्या द बॉक्स इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ स्मॉल चॉकलेट्स, और उसके अंदर क्या क्या किया गया है छोटे छोटे चॉकलेट्स रखे गए हैं। द शॉपकीपर वांट्स टू नो द स्पेस इन साइड द बॉक्स। अब शॉपकीपर क्या चाहता है, चाहता है क्या है कि उसके अंदर कितना स्पेस है। अब इसकी बेस्ड पे क्वेश्चन दिया क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सिंपल, वेरी सिंपल। व्हाट विल द वॉल्यूम, दैट विल बी द a into a into a, and that means side into side into side. That means that is a cube, that is the 6a cube. That is 6 into 6 into 6, which is equal to 6a cube. Now second question is that find the total surface area of the cube. Total surface area of the cube क्या होगा, तो हम लोग पता है क्या एक क्यूब में 6 फेस होता है। कितना फेस होता है टोटल 6 फेस होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट लेफ्ट एंड बोथ साइड ऑफ द आवर हैंड्स, आवर फ्रंट एंड आवर बैक एंड टॉप एंड द फ्लोर, दैट इज द 6 साइड्स। 6 साइड अगर होता है तो 6 साइड से क्या करेंगे हम उस पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 6 को हम क्या करेंगे 6 इंटू ए स्क्वायर, एक का एरिया निकालेंगे क्या करेंगे साइड इंटू साइड करेंगे। वहाँ का टोटल फेस कितना होता है 6 होता है, तो 6 फेस होता है तो क्या करेंगे उसको 6 इंटू ए स्क्वायर करेंगे, तो वो भी क्या आएगा मेरा क्या आएगा सेम आएगा कितना 260 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। अब क्या सर वॉल्यूम भी सेम आ रहा है, टोटल सर्फेस एरिया भी सेम आ रहा है, हाँ लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा है वो वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। इफ here is a centimeter square, now come to the third question. How many such boxes can be filled using 432 centimeter cube of chocolate? कह रहा है क्या एक क्यूब जो दिया हुआ है यहाँ पे 432 सेंटीमीटर क्यूब का एक चॉकलेट का अगर वहाँ पे वॉल्यूम है तो कितने क्यूब्स वहाँ पे आ सकते हैं उसमें, हाँ मैंने क्यूब्स उसमें जो चॉकलेट्स बॉक्स है कितना उसमें फिट किया जा सकता है। सो हियर इज दैट क्या करेंगे इसको नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या करेंगे, हमको क्या दिया गया एक का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक। अगर ऐसा एक वॉल्यूम दिया है तो उसको क्या कर लेंगे उसको डिवाइड करेंगे। सच बॉक्सेस कैन बी फिल्ड यूजिंग इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ था हमारे पास कि उसका जो एज दिया हुआ था बॉक्स का वो 6 सेंटीमीटर ही दिया हुआ था। जब एज हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे उसको जो वॉल्यूम अब दिया हुआ है उससे उसको डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यानी कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, और डायरेक्टली सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता है इसमें तो हमें जो पहले क्या करना पड़ता है उसका वॉल्यूम बॉक्स का निकालना पड़ता है। जब वॉल्यूम का बॉक्स निकाल लेंगे और जैसे वॉल्यूम का बॉक्स निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे उसको जो वॉल्यूम अब जो नया वाला दिया हुआ है उससे उसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन क्या था वो क्यूबॉइड बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या था अभी जो हम लोगों ने किया वो हमारा क्वेश्चन हमारा
क्यूब बेस्ड है, ठीक है। नाउ वी विल डू द वन क्वेश्चन based on the cylinder. Okay, this is the question. An oil drum used in a factory is cylindrical. एक ड्रम है जो हमारा फैक्ट्री में यूज होता है और वो किस फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द ड्रम इज 7 सेंटीमीटर। जो ड्रम का रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे कह रहा है क्या, एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर। जब हम इसकी बात करते हैं समझना, क्या क्या दिया, एक ड्रम दिया जिसका बेस हमारा दिया, बेस में जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। यानी कि समझना, यहाँ से एक ड्रम दिया हुआ मेरे पास, समझना। अगर ये ड्रम है तो ड्रम में क्या दिया, इसका रेडियस, ये वाला पोर्शन ये दिया है कितना, ये दिया है मेरा 7 सेंटीमीटर, ठीक। आगे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे कह रहा है क्या, कि हाइट दिया हुआ है इसका 20 सेंटीमीटर। जो हाइट 20 सेंटीमीटर यानी कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये हमारा h हो जाएगा। और ये कितना दिया है, दिस इज ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक। जैसे अब यहाँ दो चीज हमको मिल गया, ड्रम में क्या क्या मिल गया, हाइट मिला और रेडियस मिल गया। और जैसे अगर हाइट और रेडियस मिला तो अब यहाँ तुरंत हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर रेडियस मिल गया तो नीचे वाला जो बेस होगा उसका एरिया क्या होता है, वो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, सर्कल बना है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यस ना। तो उसका एरिया जो हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है क्या, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ड्रम। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इन द ड्रम। इस ड्रम में कितना ऑयल आएगा वो पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल डज द ड्रम कंटेन। कितना लीटर उसमें है, ठीक, कितना लीटर ऑयल उसमें प्रेजेंट है। अब जैसे ये होगा ध्यान समझेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा, पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच। क्यों 2 पाई आर इंटू एच होता है, क्योंकि 2 पाई आर क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल सर्कमफ्रेंस कितना 2 पाई आर, और कितने हाइट तक, ये वाला इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा ये कितना होगा 2 पाई, ये वाला 2 पाई आर। जब ये 2 पाई आर होगा, ठीक है, तो ऐसा 2 पाई आर, तो अब 2 पाई आर तो पूरे ऊपर से लेकर कहाँ तक, नीचे तक, तो वही तो जो कवर वाला एरिया होगा। जब वो कवर वाला एरिया होगा तो क्या करेंगे उसको 2 पाई आर इंटू एच। जब 2 पाई आर इंटू एच करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्या, कर्व सरफेस एरिया। क्यों, वही तो टर्न वाला है, ये वाला, ये जो है यही तो कर्व है, ये जो टर्न वाला एरिया है ये हमको यहाँ से क्या होगा, मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इन द ड्रम। जो ड्रम में ऑयल प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम कितना है, कितना ऑयल है उसमें। क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्यों पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
क्योंकि और एक हमने अभी अभी बात की थी क्या कि नीचे जो जो बेस है हमारा उसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना हाइट तक, तो एच हाइट तक, यहाँ यही तो बोला पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया कितना, इस एरिया की बात करेंगे अगर हम, ये होगा मेरा पाई आर स्क्वायर। ठीक, जब ये पाई आर स्क्वायर होगा तो अब ये कितने हाइट तक है, तो इस हाइट तक है ना पूरा एच हाइट तक, जब एच हाइट तक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जैसे पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे तुरंत हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसका वॉल्यूम। तीन ही क्वेश्चन करेंगे कि स्टूडेंट्स नहीं है, कम है, तो अगर कल आप लोग को क्लास करना होगा तो पुट द मैसेज टू मी, इफ यू डोंट वांट देन okay. Now come to the third question. Third question is that how many liters of the oil does the ड्रम कंटेन। अभी हमने क्या निकाला, उसका वॉल्यूम निकाला, किसमें पाई आर स्क्वायर एच किया, उसका वॉल्यूम आ गया कितना 3080 सेंटीमीटर क्यूब। अब कैपेसिटी निकालेंगे तो जो 3080 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम निकाले थे उसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और जैसे डिवाइड करेंगे ये हमारा किस में आ जाएगा, ये लीटर में आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा जो वॉल्यूम निकाला है हमने, इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कैपेसिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किया, क्वेश्चन 1 2 3। पहला क्वेश्चन किए थे हम लोग, ये क्यूबाइड बेस था, क्यूबाइड वाला क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोगों ने किया क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस था। उसके बाद सिलेंडर यानी ऑयल ड्रम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमने देखा कि पाई आर स्क्वायर ये ड्रम है, इसको तो एक नीचे का बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो अगर एच हाइट तक है तो वहाँ से पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके सिलेबस बेस्ड है। एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये, इफ यू आर एबल टू सी, आई हैव टुडे you have no issues about the picture quality। आज के लिए सबको दिख रहा होगा। कौन कौन लाइव में है, यस व्हाई नॉट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द टुडेज फोर्थ क्वेश्चन। आज का ये फोर्थ क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन में क्या, 3 क्वांटिटीज x y and z are such that x and y are directly proportional to each other while y and z are inversely proportional to each other। ये लीनियर क्वेश्चन का क्वेश्चन है और ये क्लास 8 के लिए क्वेश्चन सही है। उधर के जो 3 क्वेश्चन थे वो 7 8 दोनों के लिए था, और ये क्वेश्चन जो है ये 8 के लिए स्पेशली है। हमने उसमें बात भी किया था कि एक्स और वाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो एक बढ़ेगा तो क्या होगा, दूसरा ही बढ़ेगा। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। याद करो, अगर अच्छे से एग्जांपल याद होगा मेरा कि हमारा जो पढ़ाई और प्लेइंग ये दोनों क्या इनवर्स रिलेशंस में होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है।
अब पढ़ने का टाइम, और यहाँ बात करेंगे क्या, पढ़ने का टाइम की बात करेंगे। अब पढ़ने का टाइम बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में, क्यों, पढ़ने का टाइम बढ़ेगा तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो यानी कि जितना हम याद कर पा रहे हैं वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर x 12 है और y 72, यानी कि कितने के रिलेशनशिप में आ रहा है वो 12 और y कितना 72 एंड z दिया हुआ 8। तो कह रहा है अगर अगर y हमारा 42 होगा तो x क्या हो जाएगा, यानी कि अब समझो जब 42 होगा यानी क्या हो रहा है, वो घट रहा है ना, यस और नो। पहले क्या था, जब x 12 था तो y कितना था मेरा 72। अब अगर मान लो y को हम घटा दें 42 तक ले आते हैं, ठीक है, तो x मेरा, अब दोनों का अगर एक काम करते हैं x इक्वल टू वाई कर दो, एक क्वेश्चन बनाओ, अगर पेज कॉपी पेन लेके बैठे हैं अगर आप, दैट विल बी गुड। अगर मैथ्स का क्लास करने बैठे हो तो कम से कम मैथ्स का कॉपी एंड पेन मे बी विद यू। 4 लोग लाइव में, कौन कौन है, पुट योर नेम्स। After this class, I will wind up the class for today. Send me message fast. Who is there? ट्वेल्व को अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये, और 72 को, तो 12 अगर 1 होगा तो y कितना होगा 6, तो 12 को और डिवाइड करते 12 बन 12 और 12 बन 12 6 72, दोनों मेरा बराबर आ रहा है, 12 बन 12 और 12 बन 12 6 72। तो अगर यहाँ से अगर x y 6 है तो x 1 है, तो अगर x y हमारा 42 चला जाएगा, यहाँ 7 6 42, यानी कि क्या हो जा रहा है मेरा y अगर 42 हो जा रहा है तो x कितना जाएगा मेरा 7 × 1 दैट इज इक्वल टू 7। अब b में क्या बोल रहा है, इफ z इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर b में z मेरा 12 है तो y का वैल्यू कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा। अब यहाँ फिर से अपर वाले क्वेश्चन में देखो क्या, y और z दोनों का क्या इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि y घटेगा तो क्या होगा z बढ़ेगा। थोड़ा सा रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, यानी वहाँ पे क्या होगा y1 अपॉन z, y1 अपॉन z1 इक्वल टू y2 अपॉन z2, y1 अपॉन y2 इक्वल टू z1 y1 z1 इक्वल टू z1 y2। y1 y2 z1 z2 z1, क्या होगा वो 72 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, ट्वेल्व को ये कुछ बी नंबर में जो हमारा सॉल्व होगा वो सॉल्व होगा 72 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या किसका आंसर आ जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नंबर कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और टुमारो यू विल से मी that do you want to continue, yes or no. If you don't want
then why I will waste my time? Thank you. Do it and send the answer of C in the comment box. Okay, and whose comment will come, that means you want to take the class. If you will not send the comment, that means you don't want to join the class, then I will wind up.